Okay, dear students, welcome to the video lecture number 15 on the topic on TQM RME 085. The topic of today is the zero defect program, and while going through this lecture, probably you will be able to describe the zero defect program, ZDP. It is also known as ZDP, zero defect program. So actually you might have, up to this you might have listened about the zero defect, zero effect program put forward by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. So the basic idea about this program is it's all about the quality enhancement program. This is to be done. If this will be achieved, probably the quality of the product will be enhanced. Means zero defect. Zero defect means the rejection, means the mistakes committed while manufacturing, or the defects coming out from the production line. If it is less, means our process is well and well versed, and this also seems that the quality is enhanced. तो ऐसा सोचिए कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जो पहले हमारे यहाँ किसी कंपनी में है, और उसमें ये है क्या कि 1000 पीस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसमें से क्या कहते हैं 50 पीस ख़राब हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं. तो अब दूसरा केस हम लेते हैं. उसी कंपनी में हम प्रोसेस को सेटराइट किया गया, मीन्स वर्कर का ट्रेनिंग दिया गया, मशीनरी का ओवरहॉल किया गया, मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस किया गया, और इंस्पेक्शन मेथड को इम्प्रूव किया गया. इन दिस वे नाउ वी विल बी एबल टू अचीव, we have the defect has decreased, gone down up to a level of suppose 10, means from 50 to 10 for a production of 1000. If this figure, what this figure indicates, this indicates towards the movement, this indicates towards the enhancement of quality. Means if the number of rejection is decreased, it means the quality is increasing. We can also consider this fact. Means the quality and defects are inversely proportional. Again I am telling you that if the rejection decreases, it means that quality is increasing, means our productivity also increases by the same time. Okay, so in this way, zero means you might have also listened that 0 watt bulb. 0 watt bulb means almost it is negligible. Zero means negligible. If it is perfect zero, then perfectly all right. Even though means this program this program indicates about the minimum as possible defective piece, production of defective piece. So this is what the notion of the zero defect program. Program means program means the architecture of the program. We have to devise a program
that how we could achieve the level of zero defects. Also, you might have listened a famous case of Mumbai Dibbawala. They have got the 6 Sigma level of certification. Means that here Sigma refers to the standard deviation. Okay, that means I am telling you the case of Mumbai Dibbawala, that why they have got the 6 Sigma certification. They have achieved a level of defect production. I am telling you the level of defect production from Dibbawala, that is the 2 mistakes for 10 lakh Dibba transaction. For the 10 lakh Dibba transaction, only 2 mistakes they were committing. If this is the level of mistakes, that is in the service industry, or if we say if the level of defective piece production in an production organization in a level of 10 lakh to 2 part per million, 2 ppm, then it is said that yes, it is the of 6 Sigma level. It is of 6 Sigma level. And even the engineers and managers are looking forward for even less rejections. So this was the background of the zero defect program. What type of program is to be launched? What should be the production program? What should be the quality program? Or what should be the management program? So that we can achieve a level of almost zero defect. We have zero defect, production of zero defective pieces. So actually a famous manager of Martin company, Martin companies Ornaldo plant in the early 60s, 60 के दशक में ऑरलैंडो में एक प्लांट था मार्टिन कंपनी, जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर जेम्स एफ हेल्पिन। तो इन्होंने जो है ये 60 के दशक में क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ वेरी फेमस, प्रमोटेड a constant conscious desire to do a job right the first time। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि डू राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, मतलब जबकि पहला ही जब शुरुआत करो, ये नहीं कि आज हम ये कर रहे हैं कल को अच्छा देख लेंगे वाली बात नहीं है यहाँ पे। डू राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जैसे मान लो एक चीज़ बनाते हैं, मान लो हम एक पेन ही बनाते हैं, तो पेन बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। पहले एक बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। तो जैसे ही बनना शुरू हुआ, तो कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब पहले क्या है, रॉ मटेरियल परचेज हम करते हैं, तो रॉ मटेरियल से ही हम क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएंगे वहीं से, क्योंकि वो भी इंड्यूस करेगा हमारा डिफेक्टिव। ठीक है, यदि रॉ मटेरियल ही ख़राब होगा तो मान लो प्लास्टिक जो हम खरीदते हैं पेन बनाने के लिए, तो यदि हमारा रॉ मटेरियल ही ख़राब होगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या कहते हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो भी ख़राब हो सकता है। तो क्यों ना हम परचेजिंग से ही हम शुरुआत कर दें, मतलब जहाँ से भी जो भी ऑपरेशन हमारा शुरुआत होता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट टाइम से हम क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएंगे और राइट करेंगे, ऑलवेज राइट। ठीक है, और उसमें हम कोई लीवे नहीं छोड़ेंगे, वी विल नॉट लीव एनी लीवे। ठीक है, इट इज़ इसेंशियली ए मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द जॉब इज प्रेजेंटेड
एज ए चैलेंज टू द इंडिविजुअल वर्कर्स। मतलब उन्होंने मतलब जो भी जॉब देते थे उसको एक चैलेंजिंग मान करके, चैलेंजिंग टर्म में वर्कर को पोज करते थे। ओके, सो द जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम्स was evolved in the Martin Company's Orlando plant in the early 60s under the leadership of their director of quality, Mr. James F. Halpin. When the company was engaged in the production of Pershing missile system for the US Army. Since then the program has been applied in the many, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं यूएस कंपनी में इसको एडॉप्ट किया गया इस फिलॉसफी को। डू, कौन सा फिलॉसफी? डू द जॉब राइट द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिकल जो है, आफ्टर दैट जनरल इलेक्ट्रिक GE जो है कंपनी हैव मेड देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ जीरो डिफेक्ट अप्रोच टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम लोग आपको पहले ही बता दिया है कि यदि डिफेक्ट कम होता है तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमारा क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब प्रोसेस हमारा सेट राइट हो रहा है। ओके, उसके बाद है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। तो द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन एंड एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या रेफर करता है कि हमारे जो डिफरेंट हायरार्कीज हैं वो कैसे उसमें क्या कहते हैं कमांड फ्लो हो रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाउ द कमांड आर फ्लोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिक्टेट्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जितना इफ़िशियंट होगा, मतलब जितना इफ़िशियंट वे में हमारा क्या कहते हैं कमांड फ्लो हो रहा है, तो इन दिस वे मतलब हाउ इफेक्टिवली द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कौन किसको रिपोर्ट करता है, इस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करता है, डिपेंड करता है। सिंस इट इज़ एन अक्रॉस द कंपनी प्रोग्राम, अक्रॉस द कंपनी मतलब होल कंपनी, मतलब TQM का इसमें फ्लेवर है। TQM है मतलब टोटल, मतलब हम कोई भी एक काम करते हैं तो उसके हर एक पहलुओं पे विचार करते हैं कि ये नहीं कि हम एक काम कर लिए तो उसमें एक डिपार्टमेंट या एक आदमी का फ़ायदा है उसमें से, या वो मतलब एक ग्रुप का फ़ायदा है, ऐसा नहीं सोचेंगे। वो फ़ायदा हम किसका सोचेंगे? सारे का, होल ऑर्गेनाइजेशन। विल टॉक अबाउट always we will talk about the whole organization always। ठीक है, since it is an across the company program, it will embrace all departments and all levels right from the chief executive to the shop floor worker और इवन द स्वीपर। ठीक है, फ्रॉम CEO टू स्वीपर सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहना चाहिए। ठीक है, टीम मैनेजमेंट। ठीक है, लाइक टीम मैनेजमेंट। ठीक है, द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट इट मस्ट हैव द फुल फेथ एंड सपोर्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी हैं हमारे मालिक हैं उनको ठीक है फुल फेथ एंड सपोर्ट। ठीक है, उनको जैसे कहें रात में कहें अच्छा ठीक है सर ये करना, ये आइडिया आया तो वो ठीक है भाई एकदम बिल्कुल करो, वो सुनेंगे, क्या कहते हैं अप्रिसिएट करेंगे, या नहीं तो होगा तो उस आइडिया पे और कोई फर्दर आइडिया होगा तो वो भी जनरेट होगा। मतलब जो भी होगा मतलब क्या कहते हैं अप्रिसिएशन वाला माहौल होना चाहिए। किसके लिए? तो जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, हु मस्ट
टेक एन एक्टिव पार्ट एट लीस्ट इन द इनिशियल लॉन्चिंग। ठीक है, समझ गए? तो उनको भी टीम का भाई हाँ, मतलब एक्चुअली CEO इज़ द कैप्टन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज़ हैविंग द हेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिज हैंड, सो wherever it is his responsibility, ultimate responsibility is in the is on the CEO. If he will turn the ham on the wrong direction, then probably the ship like organization will move in some other direction. So he is only the person, if he will do right, then everything will be set right. समझे? तो ये प्रोग्राम में क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स इन द प्रोग्राम। पहला है मोटिवेशन ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट मोटिवेट है कि नहीं इसको लॉन्च करने में। ठीक है, या वो मीनेज टाइप का कि अच्छा चलो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो चल ही रहा है, हाँ ठीक है। और दूसरा है इंडो क्राइटेरियन ऑफ सुपरवाइजर एंड वर्कर। पहला क्या है, मोटिवेशन ऑफ द मैनेजमेंट, देन इंडो क्राइटेरियन ऑफ सुपरवाइजर एंड वर्कर, कोऑपरेटिव एक्शन। तीसरा क्या है, कोऑपरेटिव एक्शन बाय द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू रिमूव इम्प्लीमेंट टू क्वालिटी, टू रिमूव इम्पेडिमेंट टू क्वालिटी। जो भी हमारे इम्पेडिमेंट हैं क्वालिटी, जो भी हर्डल्स हैं, क्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हर्डल्स होगा ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हम क्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हर्डल को हम लोग रिमूव करेंगे, इम्पेडिमेंट टू क्वालिटी। फिर क्या है, लेइंग डाउन टारगेट्स। अब उसमें टारगेट बनाएंगे, जैसे पहले हमारा 1000 पीस बनाते हैं एक महीने में, उसमें से 50 पीस रिजेक्ट होता है, तब हम देखेंगे कि यार ये लगा देंगे सब जगह कंपनी में कि हमारे 50 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद टारगेट ये लगा देंगे कि भाई अब हम इसको करना है कितना, इसको ब्रिंग डाउन, इट विल बी इन एंड वी विल लॉन्च द प्रोग्राम इन दिस वे, इट विल कम डाउन टू ए लेवल ऑफ 10। तो 50 से अब 10 के फिगर पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, हाउ वी विल गो थ्रू, हाँ ठीक है। फिर हम उससे क्या सीख लेंगे, इसको लेने से 10 कैसे हुआ, तो हम देखेंगे। अब मान लो हो सकता है कि हमने एक प्रोग्राम लगाया तो 50 से 60 हो गया, तो हम उससे भी सीख लेंगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो 50 से तो ये 60 हो गया, अब क्या हमने गलत किया, क्या हमने प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसमें क्या गलतियाँ थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई 50 से 10 की तरफ ही कम ही होगा, हो सकता है हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया तो वो डिफेक्ट हमारे बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम देख करके वी विल कम फॉरवर्ड। तो उसमें से लेकिन क्या गलतियाँ हुई और क्यों ऐसा हुआ, ये एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, एंड अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल come up to the level what we have set in the target. Okay, तो फिर क्या है कि मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, ये बहुत ही पक्का चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट का मेजरमेंट क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक एक्शन हमने लिखे, ये एक्शन करेंगे, ठीक है। फिर सब लोगों का कॉन्सेंसस लिए, सब लोगों से ओपिनियन लिए और हम इसमें फेरबदल करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। मतलब प्रोग्राम मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ द रिजेक्शन, फॉर द रिडक्शन ऑफ द रिजेक्टेड पीसेस। इसके लिए हमने एक ये बनाया, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ, पहले लेवल 50 था, ठीक है, फिर क्या आया 40 आया। हमने सेट किया था कि भाई ऐसे करेंगे तो हो सकता है हमारा लेवल 10 पे चला है, लेकिन 10 नहीं हुआ तो क्या कहते हैं कि 40 पे आ गया। तो हम देखेंगे ये 40 पे क्यों आया, हमने सेट किया था भाई टारगेट की 10 तक आ जाएगा। तो क्या क्या वो रिव्यू, वी विल अगेन रिव्यू द प्रोग्राम, ठीक है। फिर से हम
रिव्यू करेंगे. अगेन वी विल व्यू द प्रोग्राम विच वाज बीइंग लॉन्च्ड अर्लियर. ठीक है, अब उसमें ये देखेंगे भाई क्यों नहीं हुआ, फिर उसमें से लेंगे कि क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से हमारा 10 ना होकर के 40 ही हो गया. ठीक है, तो फिर हम उसको फिर करेक्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम को और फिर अगेन इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड अगेन वी विल इटरेट एंड इटरेट एंड इटरेट and such that we are not achieving the target. Okay, again after reaching the target, again we will set the new target, and in this way we will come up to a level of zero defect. Okay, तो बार बार यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट करते रहेंगे. फिर क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ अचीवर, कि भाई किसका रोल वाइटल था, उसको प्रमोट भी तो करना है, उसका मोटिवेशन भी तो करना है कि भाई अच्छा इनका बहुत अच्छा रोल रहा इसमें, इस डिपार्टमेंट का या इस इंडिविजुअल का या इस वर्कर का. ठीक है, कि जिसकी वजह से द की प्लेयर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड दे विल बी अवार्डेड एंड ऑल. ठीक है, तो यहाँ से हम पहला पॉइंट क्या है, मोटिवेशन ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, before the motivation of the worker, it is essential to motivate the managers. Unless managers have faith in the zero defect program and they give their wholehearted cooperation, the program just cannot succeed. ठीक है, जब तक वो मतलब हार्ट फेल्ट सपोर्ट नहीं होगा, मतलब अब हमारे मन में है कि अच्छा इसने प्रोग्राम लॉन्च किया है. आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा, क्या कहते हैं ये द बर्निंग ट्रेन, देखें कि नहीं आप लोग? तो उसमें याद कीजिए कि उसमें एक टीम था, सब लोग बना रहे थे, लेकिन उसमें एक जो विलन था वो क्या था, हर वक्त वो चाह रहा था यार ट्रेन जो सुपर एक्सप्रेस बना है उसका कुछ न कुछ ऐसा हो जाए कि लेकिन वो भी एक टीम में था. ठीक है, तो ऐसा ना हो, मतलब सबका होल हार्टेड सपोर्ट रहे. ठीक है, कोई उसमें ये ना हो कि भाई अच्छा ये आगे है हम इसका बैक बाइटिंग ना करें. ठीक है, या प्रोडक्शन में कोई उसमें ऐसा रोल ना प्ले कर दे कि चीज़ें ख़राब हो जाए. ठीक है, जानबूझ करके कई लोग होते हैं ना, तो ऐसा ना होना चाहिए. ठीक है, देयरफॉर मोटिवेशन एफर्ट शुड फर्स्ट बी डायरेक्टेड एट द मैनेजरियल स्टाफ. ठीक है, CEO से मैनेजरियल स्टाफ पे आएगा, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर एक्सेट्रा मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर. ठीक है, फॉर द मैनेजर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. दिस कुड बी अचीव्ड बाय ए सीरीज ऑफ ब्रीफिंग्स. ठीक है, सीरीज ऑफ ब्रीफिंग्स. तो पहले एकाएक जो है CEO बैठाता है, मीटिंग नहीं, आप लोग देखते होंगे CEO बार बार मीटिंग लेता है, पहले मीटिंग में कुछ किया फिर दूसरा मीटिंग, मतलब एकाएक मतलब ये नहीं करेंगे, एकाएक लॉन्च नहीं करेंगे हम. तो कैसे लॉन्च करेंगे, पार्ट में लॉन्च करेंगे, मतलब फेज़ में लॉन्च करेंगे. पहले ब्रीफिंग्स होगा. ठीक है, सीरीज ऑफ ब्रीफिंग्स, द फर्स्ट ऑफ विच इनिशिएटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ. ठीक है, और फॉलोड बाय टू सिग्निफाई हिज सपोर्ट टू द प्रोग्राम. ठीक है, द एक्चुअल एक्सप्लेनिंग ऑफ द एम एंड कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी लेफ्ट टू द प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर. अब एक प्रोग्राम होगा तो भाई इसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो प्रोग्राम को लॉन्च करेगा. ठीक है, तो उनका फुल सपोर्ट तो CEO से आ गया, और फिर वो क्या करेगा कि फुल सपोर्ट CEO से आ गया, और उसके बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करते जाएगा. ठीक है, उसके बाद है indoctrination of the supervisor and workers. Once the program has been sold to the manager, means it is program is comprehended, मतलब समझाया गया, मैनेजर को समझा दिया गया. The indoctrination and motivation campaign should be beamed at the shop floor staff
एंड वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद जब उनको दिया गया तो फिर वो क्या कहते हैं शॉप फ्लोर तक पहुंच गया। इन द फर्स्ट फेज इफर्ट शुड be made to develop quality awareness by educating them on the company's product, their use, the result of defects on the product performance and the customer। तो पहले इसको ये जानना होगा, मतलब यहाँ पे ये बात है जीरो डिफेक्ट तभी आएगा, कैसे आएगा कि जब सारे एक्चुअली इंटरनल कस्टमर का मतलब है कि सारे आदमी जब तक कि अवेयर्ड नहीं होंगे जो हम बना रहे हैं तो दूसरा यूज कर रहा है, तो पहले हम सोचेंगे यदि हम यूज करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, विल थिंक अबाउट आवर सेल्फ। तो मान लो क्या कहते हैं कि सपोज करो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम अपने कॉलेज का, तो प्रॉब्ली यू विल बेटर अंडरस्टैंड। मान लो हम एक कर रहे हैं कि भाई एडमिशन क्राइटेरिया हम सोच रहे हैं कि भाई कि हमें बच्चे आ जाएं। ठीक है भाई, ओके। अब हम सोचें अपने से कि हम अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, हम अपने से सोचेंगे। मतलब हम भी तो एक इंटरनल कस्टमर हैं, हमारे भी तो लड़के यहाँ पढ़ सकते हैं, हमारे भी तो बच्चे यहाँ पढ़ सकती है। यहाँ क्या कमी है जो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे यदि सोचेंगे, यदि हम एज ए प्रोफेसर सोचेंगे तो हम नहीं सोच पाएंगे। यदि हम ऐसे एज ए गार्जियन सोचेंगे कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है जो हम अपनी पहले हम सोचेंगे कि हम अपनी बच्चे को पढ़ाएं यहाँ कि नहीं पढ़ाएं, तो पढ़ाएं तो क्यों पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं तो क्यों नहीं पढ़ाएं, या क्या दिक्कतें हो रही है। वही दिक्कत और सब गार्जियन को हो रहा है, वही सब दिक्कतें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो इफ़ यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन दिस मैनर देन प्रॉब्ली वी कैन गो फॉर द जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या है कि पहले सारे लोगों को ये समझना होगा कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या इसका यूज है, ठीक है, और क्या करने से क्वालिटी अवेयरनेस बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, द रिजल्ट डिफेक्ट होने से क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड द कस्टमर, जो ले रहा है उसके क्या ग्रीवांसेस है, सबको समझना होगा। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोग्राम एक कैंपेन है, इसका पूरा प्रचार करना होगा। जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम इज यूज्ड ओनली टू रिवार्ड द सुपीरियर टू द डिग्निटी ऑफ द मैन एंड हिज जॉब। Besides, a zero defect program is used only to reward supervisor achievement and not for the punishing employee for their mistakes। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है थ्योरी एक्स और एक होता है थ्योरी वाई। ठीक है, मोर देन दैट हम आपको बताना चाहेंगे। एक थ्योरी एक्स कहता है क्या कि ऑल द means 80% of the employees are inherently not willing to do work, so we should devise a means so that we can make them to work। उनको काम पे लाने के लिए हमें मेथड डिवाइस करना होगा कि वो काम पे आ जाए, काम करने लगें। क्या करेंगे तो इंसेंटिव कर दें, क्या करें तो और भी कुछ कर दें, क्या हम मेथड अपना सकते हैं। तो ये कहता है थ्योरी एक्स। थ्योरी वाई कहता है कि पीपुल्स आर इनहेरेंटली विलिंग टू डू वर्क, और वो बढ़िया से काम नहीं कर पाता है क्योंकि हम उनको बढ़िया तरीके का एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, कुछ उनके दिल में है जिसकी वजह से वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की थिंकिंग यदि है तो दिस इज़ व्हाट द थ्योरी वाई। ओके, तो इसके बाद था हमारा क्या पॉइंट, मैनेजमेंट एक्शन इन रिमूविंग इम्पेडिमेंट्स टू क्वालिटी। ठीक है,
तो क्वालिटी के लिए अब इसमें क्या है कि जो भी हमारी जो छोटे छोटे दिक्कतें होंगी उसके लिए मैनेजमेंट क्या कमिटेड है। जैसे छोटी दिक्कतें आई, कोई भी बैरियर्स आया, उस बैरियर्स को एकदम तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, हाँ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद है एरर कॉज रिमूवल। कॉज रिमूवल ये जो इसी कावा ने दिया था फिशबोन डायग्राम। तो हम डिफेक्ट जैसे ही हुआ तो उस डिफेक्ट क्यों हुआ, हम ऐसा सोचेंगे। ऐसा उसका कारण क्या है, डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस होने का कारण क्या है। भाई वर्कर का दोष है कि मशीन मैन का दोष है कि मशीन का दोष है कि जो परचेज आइटम जो परचेज का दोष है या एनर्जी का फ्लक्चुएशन है। ऐसा क्या दिक्कत है जो डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस हुआ। जैसे डिफेक्ट आएगा तो हम उस डिफेक्ट के कारण को एनालाइज करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट एनालाइजिंग द कॉज फॉर द डिफेक्ट्स। और जब हम कॉज पा जाएंगे तो और उस कॉज को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करके देखेंगे कि अब डिफेक्टिव पीसेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो फिर किस कारण से आ रहा है। अगेन वी विल इटरेट एंड इटरेट। इन दिस वे वी विल अचीव अप टू द लेवल ऑफ। फिर आप लोगों को पहले ही बताए थे लेइंग डाउन टारगेट्स। फिर टारगेट के वाइज चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसको अचीव करेंगे। फिर नया टारगेट बनाएंगे। पहले एक टारगेट बनाया, फिर टारगेट को क्यों नहीं अचीव हो रहा है, फिर उसको अचीव करने का कोशिश करेंगे। फिर जब अचीव हो गया देन वी विल अगेन फर्दर डिवाइस another target, and in this way we will come up to a level of zero defects। ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ये तो आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ अचीवर्स एंड लास्ट द एप्लीकेशन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ अचीवर्स, and in this way we will be able to implement the zero defect programs। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशन की बात पर चलते हैं। ये जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम इज ए वैल्यूएबल मोटिवेशन टेक्निक विच कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री वेयर क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यदि हम क्वालिटी को इम्पॉर्टेंट समझें तो। हाउएवर इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए क्रू all, as it cannot solve quality problems where the causative factors are management controlled. This can be applied only where management has provided all necessary means of quality control, and what is required is the proper state of mind of the worker। State of mind ये change करना होगा। In this chapter an attempt has been made to introduce the reader to the actually in this I would like to bring the concept of zero defect and essential features of such programs, and you may also if you want to know further about the zero defects program, then you may go through the book authored by F. Halpin and published in McGraw-Hill, York. Okay, so if you will go through with this book, probably you will know more about the zero defects program। I hope with this you might have you might be able to describe the what is zero defect program। Actually zero means not absolutely zero, but towards zero program launching towards achieving of the zero defect, and ultimately the a time will come when we will have the zero defects। Thank you, and we will meet in the next video lecture। Thank you all। Okay, we will meet in the next lecture। Thank you।